Good morning, students. Today we shall read a new poem which is written by Walt Whitman. Walt Whitman is a major American poet. He wrote a number of poems, and in this poem, he depicts the quality and characteristics of animals. In this poem, he wants to tell us that animals are having more good qualities than humans. That's why he admits his love towards animals. In this poem, he counts the characteristics of animals. What are their characteristics? In order to know the characteristics of animals that are counted by Walt Whitman, the poet, before reading this poem, we shall go through these lines. The poet tells us that he feels more at home with animals than humans, whom he finds complicated and false. The poet tells us that कवि कहता है कि उसे जो जानवर हैं उनके साथ रहना मानवों की तुलना में ज़्यादा अच्छा लगता है. He wants to live with animals than the human beings. Why he is telling this? Whom he finds complicated and false. Because the poet has a firm belief that humans are more complicated and they are used to lie. वे झूठे और पेचीदा होते हैं. इसलिए वॉल्ट व्हिटमैन जो पोएट हैं वो कहते हैं कि मुझे जो मानव हैं वो इसलिए अच्छे नहीं लगते हैं क्योंकि वो झूठे और मक्कार होते हैं और बहुत जटिल कैरेक्टर उनका होता है. तो अब हम लाइन बाय लाइन ज़रा पोएम को पढ़ लेते हैं. I think I could turn and live with animals. They are so placid and self-contained. I stand and look at them long and long. They do not sweat and whine about their condition. They do not lie awake in the dark and weep for their sins. They do not make me sick discussing their duty to God. Not one is dissatisfied, not one is demented with the mania of owning things. Not one kneels to another, nor to his kind that lived thousands of years ago. Not one is respectable or unhappy over the whole earth. So they show their relations to me and I accept them. They bring me tokens of myself. They evince them plainly in their possession. I wonder where they get those tokens. Did I pass that way used times ago and negligently drop them? I think I could turn and live with animals. मैं सोचता हूँ कि मैं जानवरों की ओर
मुड़ सकूं और उनके साथ रह सकूं। दे आर सो प्लेसिड, प्लेसिड मीन्स होता है काम, काम मीन्स शांत, जो बहुत शांत प्रिय होते हैं अर्थात शांतचित्त होते हैं। एंड सेल्फ कंटेंड, सेल्फ कंटेंड मीन्स सेटिस्फाइड, वे आत्मसंतुष्ट होते हैं। आई स्टैंड एंड लुक एट देम लॉन्ग एंड लॉन्ग, मैं खड़ा होता हूँ और उनको लंबे समय तक, एक काफ़ी देर तक उनको देखता हूँ, क्योंकि वे क्या हैं, शांत प्रिय हैं, शांत स्वभाव के हैं और संतुष्ट से लगने वाले प्राणी हैं। आगे, दे डू नॉट स्वेट and whine about their condition. They do not lie awake in the dark and weep for their sins. They do not make me sick discussing their duty to God. Not one is dissatisfied, not one is demented with the mania of owning things. Not one kneels to another, nor to his kind that lived thousands of years ago. Not one is respectable or unhappy over the whole earth. They do not sweat. Sweat means होता है वैसे पसीना, लेकिन यहाँ पे स्वेट का अर्थ पसीना आना नहीं है, यहाँ पे परेशान होना। वे परेशान नहीं होते हैं, अर्थात यहाँ पे पोइट एनिमल्स की बात कर रहे हैं। ही इज टॉकिंग अबाउट एनिमल्स हियर एंड ही इज सेइंग दैट दे डोंट डिस्टर्ब इजीली, वे परेशान नहीं होते हैं। एंड वाइन अबाउट देयर कंडीशन, और अपनी अवस्था के लिए वो कराहते नहीं हैं, किसी के सामने रोते नहीं हैं। दे डू नॉट लाई अवेक इन द डार्क एंड वीप फॉर देयर सिंस। दे डू नॉट लाई अवेक इन द डार्क, डार्क मीन्स यहाँ पे नाइट के लिए कहा गया है। वे रात्रि को लेटे हुए अपनी आंखों को खोले हुए नहीं रहते हैं, अर्थात वे लेट कर नहीं जागते हैं। जैसे हम क्या करते हैं, हमने कुछ गलत कर दिया तो हम रात को सोने से पहले परेशान हो जाते हैं और हमारी आंखें, हम लेटे तो होते हैं लेकिन हमारी आंखें और माइंड एक्टिव रहता है। तो यहाँ पे जो पोएट हैं वो कह रहे हैं कि वे रात में लेट कर नहीं जागते हैं। एंड वीप फॉर देयर सिंस, और अपने पापों के लिए पश्चाताप नहीं करते हैं, अर्थात अपने पापों का रोना नहीं रोते हैं। दे डू नॉट मेक मी सिक डिस्कसिंग देयर ड्यूटी टू गॉड, वे भगवान के प्रति उनके क्या कर्तव्य हैं उनके बारे में बहस करके, उनके बारे में चर्चा परिचर्चा करके मुझे बीमार नहीं करते हैं, मुझे परेशान नहीं करते हैं। दे डू नॉट मेक मी सिक, वे मुझे दुखी नहीं करते हैं। अब यहाँ पे कंपैरिजन देखें आप तो व्यक्ति में क्या है, वैसे जो मानव है वो किसी का भला तो करता नहीं है, अगर कर भी दे तो वो क्या करता है, भगवान के लिए कहता है कि भगवान देखो मैं ये कर रहा हूँ, मैंने ये अच्छा काम किया, अर्थात भगवान को अपने फर्ज, अपने जो उसने अच्छे काम भी किए हैं उन्हें भी गिनवाना चाहता है। लेकिन जो जानवर होते हैं वो अगर अच्छा काम करते भी हैं तो वो भगवान के लिए कभी अपने भगवान के प्रति उनके जो कर्तव्य हैं उनके बारे में कोई डिस्कस नहीं करते हैं और इस तरह से वो परिचर्चा नहीं करते हैं, तो वे मुझे दुखी नहीं करते हैं। नॉट वन इज डिससेटिस्फाइड, कोई भी उनमें असंतुष्ट नहीं होता है। नॉट वन इज डिमेंटेड विद द मैनिया ऑफ ऑनिंग थिंग्स, ऑन मीन्स होता है कमाना, चीज़ों को इकट्ठा करना या कमाना, अर्थात पैसों को कमाना या चीज़ों को अपने घर में इकट्ठा करने का जो पागलपन होता है वो उनमें नहीं होता है। मैनिया मीन्स पागलपन, डिमेंटेड मीन्स पागल होते हैं। वे चीज़ों को इकट्ठा करने का उनमें जो जुनून होता है वो बिल्कुल भी नहीं होता है। व्यक्तियों की तरह व्यक्ति अगर प्रोग्रेस करता है तो उसका दिल भरता नहीं है, वो और ज़्यादा चीज़ों को
he wants to do more and more. Not one kneels to another. कोई भी जानवर एक दूसरे के सामने घुटने टेक कर नहीं झुकता है, अर्थात वह किसी की गुलामी नहीं करता है. Nor to his kind that lived thousands of years ago. और ऐसा हजारों वर्षों में किसी भी जानवर ने नहीं किया होगा. व्यक्तियों की तरफ अगर बात की जाए तो व्यक्ति अपने उन्नति के लिए वो चापलूसी करने से बाज नहीं आते हैं, अर्थात वे कभी ना कभी अपनी लाइफ में चापलूसी जरूर करते हैं, लेकिन जानवर ऐसा नहीं करते हैं. Not one is respectable or unhappy over the whole earth. और कोई भी जानवर दुखी नहीं होता है, नहीं वह सम्मानित है. इस पूरी पृथ्वी में जितने भी जीव जंतु हैं वे न तो सम्मानीय हैं, अर्थात उन सभी समान हैं. दे आर इक्वल. अब जो व्यक्ति होते हैं, मनुष्य होते हैं, वे इक्वल नहीं हैं, क्योंकि इक्वल मानने को कोई तैयार होता ही नहीं है. कोई गरीब है, कोई अमीर है, कोई किसी का रंग गोरा है, कोई काला है. तो इस तरह से कहने का अर्थ ये है कि जो भेदभाव होता है, डिस्क्रिमिनेशन होता है, वो ह्यूमंस में पाया जाता है. ये डिस्क्रिमिनेशन जानवरों में नहीं होता है, इसलिए भी उनको ये गुण जानवरों का अच्छा लगता है. लास्ट जो स्टेंजा है, सो दे शो देयर रिलेशंस टू मी and I accept them. They bring me tokens of myself. They evince them plainly in their possession. I wonder where they get those tokens. Did I pass that way huge times ago and negligently drop them? Not one is, ये तो हमने पढ़ लिया था. आगे ये वाला so they show their relations to me. वे अपना जो संबंध है वो मेरे प्रति दिखाते हैं. एंड आई एक्सेप्ट देम. और मैं उनके संबंध जो वो मेरी ओर इशारा करते हैं, मैं उनको स्वीकार करता हूँ. दे ब्रिंग मी टोकन्स ऑफ माई सेल्फ. टोकन्स मीन्स यहाँ पे क्वालिटीज के लिए कहा गया है, या साइंस या इशारों के लिए, पॉइंट आउट के लिए किया गया है. दे ब्रिंग मी टोकन्स ऑफ माई सेल्फ. वे मेरे स्वयं की जो क्वालिटीज हैं वो लाते हैं. दे एविंस देम प्लानली इन देयर पोजिशन. पोजिशन मीन्स होता है अधिकार करना. एविंस मीन्स होता है सिद्ध करना, प्रूफ करना. वे अपने अधिकारों को विनम्रता के साथ, सादगी के साथ, प्लानली मीन्स सिंप्लिसिटी, सादगी के साथ वे अपने अधिकारों को सिद्ध भी करते हैं. अब कौन से अधिकार हैं उनके? जानवरों में एक मात्र उनकी जो आवश्यकता होती है वो उनकी पेट की आवश्यकता होती है, अर्थात उनका और कोई जीवन में उनमें और पागलपन नहीं होता जिस तरह से मनुष्य में होता है. उनका अगर पेट भरा रहता है तो वो कभी भी दुखी नहीं हो सकते, अर्थात उनकी जो आवश्यकताएं हैं, देयर नेसेसिटीज आर लिमिटेड. उनकी जो आवश्यकताएं हैं वो बहुत सीमित होती हैं. और वे, अगर आपने देखा होगा कि अगर किसी जानवर को घर में, आपकी गौशाला में अगर 2 बैल हैं और उनके बीच में आपने घास रखा हुआ है दोनों को खाने के लिए, तो वे कोशिश करते हैं कि उनके अधिकार में जितना उनका अधिकार है उस अधिकार को छोड़ते भी नहीं हैं वो. अब यहाँ पे ये जो लाइन है, दे ब्रिंग मी टोकन्स ऑफ माई सेल्फ, दे एविंस देम प्लानली इन देयर पोजीशन, इसमें सिर्फ जानवर की एक आदत के बारे में
कवि ने बताया है। आगे है, आई वंडर वेयर दे गेट दोज टोकन्स। और मैं आश्चर्य में पड़ जाता हूँ कि उन्हें ये क्वालिटीज कहाँ से मिली। वेयर डिड दे गेट दोज टोकन्स फ्रॉम। इन्हें ये क्वालिटीज कहाँ से मिली, ये मेरी समझ से बाहर है। लेकिन तभी एट द सेम टाइम द पोइट रिमेंबर्स हिज चाइल्डहुड। कवि को अपने बचपन की याद आती है और वो सोचते हैं, डिड आई पास दैट वे ह्यूज टाइम्स अगो। क्या मैंने इस तरह की जो क्वालिटीज़ जानवरों में होती हैं, क्या मैंने बहुत लंबे समय पहले एंड नेग्लिजेंटली ड्रॉप देम, उनको केयरलेसली मैंने छोड़ दिया है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैंने बहुत समय पहले जो जानवरों में ये गुण हैं, क्या क्या गुण जो अभी इससे पहले हमने जिक्र किया है, उन गुणों की बात पॉइंट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं भी जब बचपन में एक बच्चा हुआ करता था तो मेरी जो आवश्यकताएं होती थी वो सीमित हुआ करती थी। अब आवश्यकताएं ही सारे समस्याओं की जड़ होती हैं। अगर आवश्यकताएं सीमित होती हो जाएं आदमी की, तो आदमी भी सेल्फ कंटेंट एंड सेटिस्फाइड हो जाएगा। तो ये जो पोम है, पोइट्स ये कहना चाहते हैं कि बहुत पहले मीन्स प्राचीन समय में व्यक्तियों की आवश्यकताएं बहुत कम हुआ करती थी। चूंकि उनकी आवश्यकताएं बहुत कम हुआ करती थी तो वे अपने आप में मस्त रहते थे, अपने आप में वो संतुष्ट रहते थे। वे किसी को अपने कारण परेशान नहीं करते थे। लेकिन उनकी जो क्वालिटीज उस टाइम पे थी, अब वो क्वालिटीज उनमें बिल्कुल भी नहीं दिखती हैं। इसलिए वो कह रहे हैं कि ह्यूमंस आर मोर कॉम्प्लिकेटेड देन एनिमल्स। उनके जो जीवन हैं वो बहुत ही जटिल हो गए हैं, यानी मनुष्यों के, और वे हर बात पर झूठ बोलते रहते हैं। लेकिन पशु ऐसा नहीं करते हैं। तो बच्चों, आई होप you have understood the explanation of this poem. अब हम इसकी पोइटिक डिवाइसेस पर बात करते हैं कि इसमें वॉल्ट व्हिटमैन ने क्या क्या डिवाइसेस यूज़ की हुई हैं। तो सबसे पहले हम राइमिंग स्कीम की बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी टॉक अबाउट राइमिंग स्कीम ऑफ दिस पोम। तो यदि हम पहली लाइन को देखें तो कंटेंट और सेकंड लाइन के अंतिम जो वर्ड है वो लॉन्ग है, तो यहाँ पे कोई राइमिंग नहीं हुई है इन दोनों शब्दों में। नीचे देखें आप, कंडीशन है, सिंस है, गॉड है, विद है, थिंग्स है, दैट है, अगो है। तो देयर इज नो एनी काइंड ऑफ राइमिंग स्कीम इन दिस पोम। Actually, this poem is written in free verse. Free verse कहते हैं एक ऐसी पोम, एक ऐसी कविता जो बिना लय के लिखी जाए और जिसमें लाइन में जो मीटर है वो भी, the meter in the lines of the poem are not used। तो ऐसी पोएम जिसमें मीटर भी निश्चित ना हो और राइमिंग स्कीम भी ना हो, तो ऐसी पोएम को कहते हैं फ्री वर्स पोएम, यानी मुक्त छंदात्मक जो कविताएं होती हैं। अब पहली बात तो हमने कर ली है। दूसरी बात हम करते हैं कि व्हाट आर द फिगर्स ऑफ स्पीच used in this
पोम। तो इससे पहले हमने 6 पोम पढ़ी थी और अधिकांश पोम में एनाफोरा एक फिगर्स ऑफ स्पीच है। ANAPHORA, एनाफोरा। मैंने इससे पहले बताया था एनाफोरा क्या होता है कि पोएम्स की 2 या 2 से अधिक लाइंस की शुरुआत यदि एक ही शब्द से हो तो हम उसको बोलते हैं कि यहाँ पे एनाफोरा फिगर्स ऑफ स्पीच यानी अलंकार का प्रयोग हुआ है। देखें आप, पहली लाइन आई थिंक है तो उसमें आई और दूसरे में आई स्टैंड है, तो यहाँ 2 जो अक्षर अथवा शब्द हैं इससे इसकी शुरुआत हुई है। नीचे तो आप देख ही रहे होंगे, दे डू नॉट। आप देखिए, इसमें देखा आप, दे डू नॉट 3 लगातार लाइन में दे डू नॉट आया है, तो यहाँ पे एनाफोरा है। आप फिर अगर नीचे की लाइन में देखेंगे तो नॉट, तो एनाफोरा का यहाँ पे यूज किया गया है। इसके अलावा एलिट्रेशन तो लगभग सभी पॉम्स में मिलता है। तो देखते हैं एलिट्रेशन यहाँ पे कहाँ कहाँ है। एलिट्रेशन कहते हैं जहाँ पे कॉन्सोनेंट्स साउंड, कॉन्सोनेंट लेटर लगातार आए। जैसे आप देखें, पी प्लेनली पोजेशन, पी जो लेटर है ये 2 बार इस लाइन में यूज हुआ है। इसके अलावा डिस्कसिंग डी और ड्यूटी डी आया है और इधर भी है डी, डू में डी है। तो एक लाइन में जिस वर्ण की, जिस लेटर की ज़्यादा आवृत्ति होती है वहाँ पे एलिट्रेशन होता है। इसके अलावा इसमें ज़्यादा फिगर्स ऑफ स्पीच यूज नहीं किए गए हैं। तो ये पोएम इस तरह से समाप्त हो गई।